Today we are going to discuss about the second part of the reproductive chapter, that is the reproduction in human beings. We know very well that human beings are the organisms which reproduce sexually. It means in any kind of sexual reproduction there are need of two organisms. One is male and another one is female. In the body of the male, testis is present, which is the primary sex organ of the male. In case of the female, the primary sex organ is ovary. In the testis, sperms are produced. In the ovary, ovum or egg is produced. After fusion of these two gametes, we result a unicellular structure that is called zygote, and this zygote develop into an embryo, and later on from that embryo a new child or baby is produced. At the age of the puberty, in the body of the male and female, a lot of changes has been observed. और प्यूबर्टी का एज क्या होता है? 12-13 ईयर्स से लेकर के 19 तक का, जिसको हम लोग एडोलेसेंस भी कहते हैं. एट द एज ऑफ द एडोलेसेंस a lot of changes has been observed in the body of the male and female child. मेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ का निकल आना, आवाज़ का भारी हो जाना, कंधे का चौड़ा हो जाना, आर्म पिट्स और जांघों के बीच बाल का उगना. दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द मेल, एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स आर developed in the body of the male child due to the production of a hormone that is called testosterone hormone, which is released by the testis. Similarly, in the body of the female also, when a female girl comes up to the age of the 12 and 13 years, a lot of changes are also observed in the body of the female. That is the enlargement of the breast, enlargement of the thigh, and development of the hairs in the reproductive around the reproductive organs, darkening of the skin of the tip of the mammary gland, that is called nipples. These are the secondary sexual characters of the female. It means 12-13 ईयर्स के बाद मेल और फीमेल के बॉडी में सेक्स ऑर्गन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, और उसके बाद वो बॉडी, मेल और फीमेल का जो बॉडी है, इट इज़ रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. तो अब इसमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन के बारे में डायग्राम के साथ ये डिस्कस करेंगे. Now we have to discuss about the male reproductive system. When we want to discuss about the male reproductive system, we must know what are the different sex organs of the male. Testis, it is the primary sex organ of the male, which is responsible for the production of the sperms. This testis is connected with the epididymis, and a tube-like structure is connected with the epididymis, that is called vas deferens. With the help of the vas deferens, the semen, the sperm which is produced in the testis, is moved towards the outer side of the body with this tubular structure. vas deferens आगे की ओर चल करके यूरिनरी ब्लैडर के साथ से होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गुजरती है, और इसके रास्ते में 2-3 ग्लैंड्स होते हैं. ऑल दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस देयर सिक्रीशन एंड मिक्स इनटू द सीमेन, इनटू द स्पर्म. कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज द सीमेन. जब ये यूरिनरी ब्लैडर के पास से गुजरता है तो यहाँ पर देखिए एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक सेमिनल वेस्किल है. ये दोनों अपना सिक्रीशन टेस्टिस से बने हुए स्पर्म्स को बाहर निकलते समय उसके अंदर मिला देता है, और यह एक प्रकार का अल्कलाइन मिल्की सब्सटेंस है जो कि
उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये मीडियम इसमें जो है सीमेन सर्वाइव करता है, उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। यह सीमेन टेस्टिस के द्वारा बनता है, एपिडिडमिस के माध्यम से वास डिफरेंस होते हुए ये यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। जिस समय ये सेक्स ऑर्गन्स फंक्शनिंग होता है, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और यह पेनिस के माध्यम से, पेनिस के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो शरीर के बाहर खुलता है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। पेनिस एक खास तरह के मसल्स की बनी होती है जो इरेक्टाइल मसल्स होती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ट्रांसफ़र द स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। पेनिस का ऊपर वाला सिरा गैलेंस पेनिस कहलाता है, और इसके ऊपर एक स्किन होती है दैट इज़ कॉल्ड फोर स्किन। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। एक तरफ मेल के बॉडी में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, और दूसरी तरफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवम का निर्माण होता है। Now we have to discuss about the female reproductive system of the human beings. Female reproductive system this is the diagram of the female reproductive system of the human beings. इसके जो different parts हैं, this is the ovary, this part is called ampulla, this is fallopian tube, this is the uterus, this part is called cervix, and this one is vagina. These are the different parts of the female reproductive system. इसमें ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, और वह एग 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन शरीर से बाहर निकलता है, यानी ओवरी से रिलीज होती है। एंड जैसे ये रिलीज होती है, ये फिम्बरी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। फीमेल के बॉडी में 12-13 ईयर्स से एक साइक्लिक चेंजेस होती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इसमें इसके यूट्रस की दीवार में जो 3 लेयर होते हैं, उन तीनों लेयर में से अंदर वाली जो लेयर्स है वो इसके लिए रेडी होता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, और ये तब होती है जब यहाँ पर एग का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये एग फर्टिलाइज्ड एग यानी जायगोट डेवलप करते हुए यूट्रस की दीवार से आकर के अटैच हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। फीमेल के बॉडी में जो एग का फॉर्मेशन होता है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि इसके लिए उसकी बॉडी सभी तरह से रेडी होती है। और उसके बाद जब एग रिलीज हो गया तो ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, इट इज़ ए साइक्लिक चेंजेस विच अकर इन द बॉडी ऑफ द फीमेल इन एवरी मंथ अबाउट 28 to 29 डेज ये रिपीट होती है, और जिसमें इसके यूट्रस की वॉल, इंडोमेट्रियम की जो वॉल है, उसमें से ब्लड या म्यूकस बॉडी के से बाहर निकलता है। और जब मेंस्ट्रुएशन होती है उसके 14वें दिन जो है ओवरी के द्वारा एग रिलीज होती है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ द एग्स बाय द ओवरी। ओवुलेशन में जैसे ही एग यहाँ से रिलीज होता है, फिम्बरी इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वो उसको रिसीव करता है, और यह एग एम्पुला वाले रीजन में आकर के वेट करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर 14th डे, एक दिन तक वो वेट करता है, अगर इस बीच में स्पर्म्स के साथ इसका कांटेक्ट हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट इन द फैलोपियन ट्यूब, यानी आज जैसे ये जायगोट बना, जायगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यह जायगोट डिवाइड करके 2 सेल का निर्माण किया, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, और इस तरह से ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड मोरूला।
ये मोरुला फर्दर डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वह एक गोलाकार रचना है, सिंगल लेयर सेल से बना रहता है, और इसके अंदर में कुछ इनर सेल मास पाए जाते हैं। इसके सिंगल सेल लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर इनर सेल मास पाया जाता है। इस स्टेज में ब्लास्टुला जो है मूव करते करते यूट्रस की वॉल पर आकर के कहीं भी अटैच हो जाता है। जब ये अटैच होती है तो उसके लिए यूट्रस की दीवार ऑलरेडी तैयार रहती है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट को, और इसका फर्दर डेवलपमेंट दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ द विलाई। इट इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ या वॉल ऑफ द यूट्रस टू रिसीव द ब्लास्टोसिस्ट। दोनों के बीच कनेक्शन बनता है और दोनों के बीच फिर प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ द प्लासेंटा दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो इज गेटिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर इट्स डेवलपमेंट। देन उसके बाद जब इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द बॉडी ऑफ द मदर इट टेक्स अबाउट 9 months। 9 महीने का टाइम लगता है बच्चे के पूर्ण विकसित होने में। अबाउट 270 डेज, कभी कभी 280 डेज भी हो जाता है, तो इसमें 10-5 दिन प्लस माइनस होता है। अब ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 9 month द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस विद इन द यूट्रस ऑफ द मदर। जब बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है उसके बाद इस डेवलपिंग एम्ब्रियो से एक मैसेज हार्मोनल सिक्रीशन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्म करता है द चाइल्ड हैज़ बीन डेवलप्ड फुल्ली। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, जो यहाँ पर यूट्रस के वॉल के पास ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको बाध्य करता है। बाय द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड there is extreme contraction or the vigorous contraction in the wall of the uterus। यूट्रस की दीवार में maximum contraction होता है। as a result the birth of the child takes place। this cervix and vagina these are the also called as birth canal। इसके द्वारा बच्चा मदर्स बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 9 months ए फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर। बच्चे का जन्म हुआ। एट द सेम टाइम हम लोग जानते हैं या देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी ए लॉट ऑफ चेंजेस हैज़ बीन ऑल्सो टेकन प्लेस इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर। उसके मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारी परिवर्तन होते हैं एंड इट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मिल्क। वहाँ पर मिल्क का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग बेबी। इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय से माँ के स्तन ग्रंथि में मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है और वह मिल्क बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमोरी ग्लैंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, फर्स्ट वीक जस्ट आफ्टर द बर्थ, इट कंटेन्स ए एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम and this colostrum is very important for developing the immune system of the child। अगर कोई बच्चा माँ का दूध पिया है और उसमें कोलोस्ट्रम वाला मिल्क पिया है तो उस बच्चे की इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दोज चाइल्ड हु हैज़ नॉट रिसीव्ड और हु हैव नॉट फीड द मदर्स मिल्क। तो इस तरह से 9 महीने के बाद एक कंप्लीट बच्चे का डेवलपमेंट होता है और वो बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, डिफरेंट स्टेज से गुजरते हुए फिर एडल्ट स्टेज में आएगा एंड अगेन आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस द चाइल्ड विल बी एबल टू प्रोड्यूस द न्यू यंग वन। तो ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही एक और पार्ट इस चैप्टर का रह जाता है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।